السلام علیکم، ماجد مقصود ہے۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان اور اس کی سیاست پہ۔ دیکھیں، آج کل بہت سارے لوگ جو عمران خان کو جس نے چڑھایا تھا، اوپر چڑھایا تھا، اور جنہوں نے عمران خان کو عمران خان بنایا، اس کے پاس تو ایک سیٹ ہوا کرتی تھی، وہ مشکل سے اس کو ملتی تھی۔ اور آج وہ ماشاءاللہ اس ملک کا بہت بڑا ایک پولیٹیکل لیڈر بن چکا ہے، اور اس کے پاس جو ووٹس ہے وہ ملینس میں اس کو ملتے ہیں، تو آپ اس کو انڈرمائن کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پروان چڑھایا، جس نے ان کو لیڈر بنایا، جن لوگوں نے ان کی صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر اس کو لبیک کہا، آج کل وہی سارے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، اب اس کو فیل کرانے کے چکر میں ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی لیڈر بنتا ہے تو اس کو پھر وہ جب اپنی بات امپلیمنٹ، اپنی پالیسی دینا شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو فیل کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان اب باتیں سمجھ چکا ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے۔ اس کا میں ابھی تقریر سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ہمیں تو حکومت کرنے نہیں دے گی، ہمیں تو دبوچ کے رکھا ہے انہوں نے، کس نے، میں نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور ہمیں انہوں نے حکومت کرنے نہیں دی، اور بدنامی ہمارے سر پہ آئی کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن حکومت کچھ کوئی اور کر رہا تھا۔ لیکن اس ملک میں جب اس طرح، جس طرح پاسٹ میں ہوتا رہا، یہ اگر چلتا رہا تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ سوچیں، اب ہمارے پاس کتنے آپشن رہے گا؟ آپ نے بھٹوس کو تو ایلیمنیٹ کر دیا، ختم کر دیا ان کی، تو اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ، اس کو بھی آپ نے سندھ تک محدود کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو اگر محدود نہیں کیا جاتا تو یہ پیپلز پارٹی ابھی بھی وہ پورے پاکستان میں ہوتی، ایک زنجیر ہوتی۔ وہ تو آپ نے بالکل اس کو ختم کر دیا، پیپلز پارٹی کو تو آپ نے پنجاب میں اس کو جیسا کہ اس کا نام ہی ختم کر دیا، آئی جائی بنا کے، پھر اس کے بعد نواز شریف کو پروموٹ کر کے، اور پھر ان پہ کیس بنا کے، وہ بھی ایسی زرداری صاحب بتا رہے تھے کہ اس پہ کس طرح کیس بنے، تو میں سن رہا تھا، تو آئی واز سو شاکڈ کہ کس طرح اس پہ کیس بنائے گئے۔ تو وہ ایک کیس ختم ہوتا تھا تو دوسرا کیس اس پہ آ جاتا تھا، دوسرا کیس ختم ہوتا تھا، سو واز دا کیس وتھ بی بی، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور لاسٹ میں اس بیچارے نے اپنی زندگی بھی دے دی، تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی۔ اب پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے سندھ تک محدود ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی نیشنل لیڈر ہے تو نواز شریف تو نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کے پاس سندھ میں تو کوئی ووٹ نہیں کرتا، اس کی پالیسی بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ پنجاب میں بھی اگر اس کو کوئی ریپرزینٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پنجاب کا بندہ ڈھونڈتا ہے کہ سندھ کا پریزیڈنٹ بن جائے۔ گوسل علی شاہ جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے کبھی پروموٹ نہیں کیا، وہ قاسم شاہ جا جیسے لوگ اور ایسے لوگوں کو سندھ میں جو ریپرزینٹ ہوتے تھے وہ بھی پنجاب کے لوگ ہوتے تھے۔ وہ زیادہ تر کوشش کرتا کہ پنجاب میں بھی کوئی بٹ مل جائے تو اسی کو پروموٹ کیا جائے، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہو کہ لاہور کا جو ریپرزینٹ ہو وہ یہاں کا سیٹلر کو سدھی جا کے وہاں بن جائے، لیکن کیونکہ وہ ان کی پالیسی تھی تو انہوں نے کبھی سندھ کو اتنی کوئی ویلیو نہیں دی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ پنجاب میں ہی میری حکومت بن سکتی ہے، تو میں دوسرے صوبوں میں اتنا خیال کیوں کروں؟ تو انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن عمران خان ابھی جس طرح کی پالیٹکس کر رہا ہے تو اس نے اس قوم کو جگہ ضرور دی ہے، قوم کو بتا ضرور دیا ہے۔ میں عمران خان کا کوئی اتنا فین نہیں، لیکن اس نے جگہ دیا ہے لوگوں کو، وہ لوگ جو بالکل ڈی پولیٹیسائز تھے اب بھی ہیں، اب بھی لوگوں کو پالیٹکس کا نہیں پتا، پارلیمنٹ پالیٹکس کا نہیں پتا، اسمبلی کا نہیں پتا، لیجسلیٹر کا نہیں پتا۔ بہت سارے لوگ جتنے جتنے اسمبلی میں آتے ہیں تو پوچھیں گے لا میکرز کیا ہوتا ہے، تو ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، قانون کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے اسپیکٹیٹرس آتے ہیں، اس کو میں تماشائی کہتا ہوں، یا پولیٹیکل ورکرس، ان کو نہیں پتا، لیکن ان کو کچھ چیزیں پتا ہے۔ کو یہ پتا ہے کہ ابھی جو عمران صاحب جتنے، عمران خان جتنے پالیٹکس کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو سینسٹائز کر رہا ہے کہ ملک میں کیا ہو، کیا ہم نے نہیں کیا اس ملک کے ساتھ، اس طرح اس ملک کو ہم نے ڈیل کیا۔ بھٹو صاحب جیسا اتنا پاپولر لیڈر، اس کو ایکسیکیوٹ کر دیا اور اسلام کے نام پہ۔ اور اس کے بعد بی بی کو ہم نے شہید کر دیا، اس کو بھی ہم نے اس دنیا سے نہیں جانے دیا، ان کے بھائیوں کو مار دیے، چار بندے ان کے جو گھر کے لوگ تھے، مرد، ان کو
मतलब एक वुमेन भी, सबको उन्होंने असैसिनेट कर दिया। इस मुल्क में नहीं रहे, उसका केस तो इस स्टेट पे है, जाहिर सी बात, लोग तो यही कहते हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ जिस तरह उसको निकाला गया, ये भी आप किसी अच्छे तरीके से, लेकिन खोटे तरीके से आपने उसको भी निकाल दिया। और उसके बाद कौन बचता है? पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, खत्म हो गई। अब तो इमरान खान, आपने इमरान खान को लाए, लॉन्च किया, जैसे भी लॉन्च किया, लेकिन अब उसके पास केपी और पंजाब के जो लोग हैं वो उसके साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग, मैं ट्विटर्स में पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि 1500 लोग हैं, 10-15 गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ियां हैं। हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं। मैं कल गुजरावाला का लाइव देख रहा था, तो वहां पे तो हजारों लोग, हजारों लोग। अब जब जितने हजारों लोग अगर इसके साथ आ रहे हैं, तो आप कैसे इसी एक पार्टी को अंडरमाइन कर सकते हैं? कम से कम हमारे जैसा बंदा, पॉलिटिकल जो आप वर्कर ही समझे या पॉलिटिकल स्टूडेंट समझे, तो वो तो कम से कम इस चीज को नहीं मान सकता कि वो भले तलत हुसैन बैठकर भी ये बात करे कि इसके साथ लोग नहीं है, तो मैं ये बात में नहीं मानूंगा। बड़े रेपुटेटेड जर्नलिस्ट, उनके पास क्योंकि कोई पार्शल, मैंने आपसे कहा कि मैं पीपल्स उसको पसंद नहीं करता, पीटीआई की पॉलिटिक्स को, लेकिन मैं उसकी हकीकत को तस्लीम करूंगा जहां भी होगा। मैं तलत उसे नहीं बन सकता, भले कितना भी मेरा स्टेचर हो। मैं ये नहीं कह सकता जैसे वो बैठ कर कहते हैं कि उसके पास लोग ही नहीं आते, वो ऐसे ही खाली कुर्सियों से बात करता है, उसकी पंजाब में कोई हैसियत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। पंजाब में लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने नवाज लीग ने पंजाब में बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन नवाज शरीफ ने जिस तरह काम किया है वो लोगों को पसंद नहीं आया। इमरान खान के साथ लोग खड़े, ये बात तो आपको तस्लीम करनी है, जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। और केपी में भी पीटीआई जीतेगी। लेकिन इसको आप, ये बड़े बड़े जितने जर्नलिस्ट हैं उसमें बहुत सारे, मैंने एक तलत साहब का नाम लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो अंडरमाइन करते हैं इसकी पॉलिटिक्स को, अंडरमाइन करते हैं कि ये है, अब इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये तो अभी बिल्कुल पीक पे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक पे है, इमरान खान खुद पीक पे है। इमरान खान की सियासत जो है वो पेनिट्रेट हो रही है, और इससे लोग समझ रहे हैं। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं, मेरा भी उससे बहुत सारा इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक फेडरल इसमें हुकूमत होती है, तो वो फेडरेशन को समटाइम वीक करने की कोशिश करता है। वो अगर चाहे तो फेडरेशन को मजबूत कर सकता है। वो फेडरेशन मजबूत तब हो सकती है जब आपके फेडरेटिंग यूनिट मजबूत हो। वो जब फेडरेटिंग यूनिट को जब कमजोर करने की कोशिश करता है, तो मुझे उसकी पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। अगर वो फेडरेटिंग यूनिट्स को मजबूत देखना चाहता है, तो आपकी फेडरेशन हमेशा मजबूत होगी। ये नहीं होगा कि आप सिर्फ सेंट्रल में बैठ के सारा कुछ चलाएं, ये होता नहीं है। आपको पार देने पड़ेंगे, अगर सूबे के राइट्स हैं तो सूबों को देने पड़ेंगे। हाँ, वो बलूचिस्तान है या सिंध है या इवन केपी है, जिसके जितने राइट्स हैं। हम सिंध के लोगों ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें पंजाब से कोई चाहिए, हम या बलूचिस्तान के जो एसिड्स है वो हमें मिलने चाहिए। हम तो चाहते हैं पहला राइट ही उनका हमें क्यों मिलने चाहिए, हमें हमारा राइट है जो हमें देना चाहिए। ये सिर्फ हमारे पास एक बदकिस्मती है कि पंजाब के लोग इस तरह नहीं सोचते। वो अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बात। वो वहां पे ऐसा नहीं सोचते कि सिंध के हुकूक सिंध में मिलने चाहिए। और उनके कभी किसी, भले कितना भी बड़ा जर्नलिस्ट हो, मैं सबको सुनता रहता हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान के साथ और सिंध के राइट्स उनको देने चाहिए। उनके राइट्स, आप सुई गैस जो है वो आप चिश्तिया तक तो पहुंचा देते हो, लेकिन कोयटा में अभी तक पूरे इलाके में जो है ना वो गैस नहीं होती। और हमारे पास सिंध में भी कुछ इस तरह का, थर में इतना बड़ा कोयला निकल रहा है, लेकिन थर के बहुत सारे गांव, विलेजेस में अभी तक बिजली नहीं। तो ये सारा कुछ जितनी जाती होती है, गैस पूरी यहाँ पे 70% 80% निकलती है, तो हमारे पास सीएनजी नहीं मिलती, और हमारे पास जो शेडिंग होती है वो सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास गैस नहीं होती। लोग भागते रहते हैं तंदूरों के पीछे रोटियां लेने के लिए और सब्जी लेने के लिए। तो ये एक एक जो एक सूरत हाल है, वो तो सबको पता है। लेकिन कब तक, ये कब तक चलेगा? कब तक आप लोगों को डिवाइड करते रहे? ये तो अंग्रेज थे जिन्होंने हमें डिवाइड और रूल किया। अभी तक ये डिवाइड रूल, लोगों को तोड़ना, पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों की सियासत को तोड़ देना, और उनकी उनकी जो स्पेशली जो पॉलिटिक्स है, अपने मुल्क के साथ जो लॉयल्टी है, उस पर शुकूक पैदा कर देना। अब नवाज शरीफ को आप भले कुछ भी कहें, लेकिन वो मुल्क दुश्मन तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? बात ही को तो करता है ना, बात ही तो करता है। वो उसने क्या किया? नवाज शरीफ, चाहे भले मुझे उसकी पॉलिटिक्स इसी तरह, मैं इमरान खान को भी एंटी स्टेट नहीं समझता, और भुट्टो, बेनजीर, कोई भी जरदारी साहब, किसी को भी मैं नहीं समझता कि वो मुल्क के खिलाफ, कोई भी मुल्क के खिलाफ।
लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे पास वो एक ट्वीट आता है तो उसके ऊपर लाखों लोग रिट्वीट कर देते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे आपको पता है कि बीबी के लिए भी इन्होंने कहा था कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, भुट्टो को भी आपने कहा कि ये मुल्क दुश्मन है। इसी तरह अब नवाज शरीफ को तो रिपीट हो रहा है हर तारीख, कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसको कहीं ना कहीं खत्म, मतलब है कहीं ना कहीं तो एंड होना होगा। नहीं होगा तो ये मुल्क जिस तरह अभी बहुत हम हमारे जो एक इकोनॉमिकल जो ब्रेक डाउन है, जो क्राइसिस है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ऐसी सूरत हाल पे हम पहुंचेंगे तो फिर किसी को हमारे पास इंटरवीन करनी पड़ जाएगी। फिर सूरत हाल हमसे बिल्कुल हमारे लोगों से नहीं संभलेगी, और उस तरफ हम जा रहे हैं, एनार्की की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तो जितने मेरे देखने वाले हैं उन दोस्तों को यही कहता हूँ कि आप सियासत को समझें, पॉलिटिक्स को समझें, क्या हो रहा है। ये अचानक क्या हो गया, जो इमरान खान इतना लाडला था, इतना स्वीट हार्ट था सबके लिए, और एकदम उनके खिलाफ सारे लोग उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए। उनके खिलाफ दोबारा जो ही नैरेटिव जिन्होंने बनाया था इमरान खान के फेवर में, वो उनके अगेंस्ट में नैरेटिव आजकल बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इसको बंद होना चाहिए। इस पे मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज सिर्फ यही बात करना चाहता था कि कल उनका एक अच्छी, मतलब एक लॉन्ग मार्च जो वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको लोग बड़ा अंडरमाइन कर, ये अंडरमाइन करना छोड़ दें। उसके पास बहुत अच्छे लोग हैं, और पंजाब में माशाल्लाह वो बहुत पेनिट्रेट कर रहा है। और इस हकीकत को जितना जल्दी हो सके इसको तस्लीम करें। अगर आप कहेंगे उसके पास लोग नहीं है, 5-7 गाड़ियां हैं, ये है वो है, एक्सीडेंट तो बिल्कुल हुआ है। वो जो बच्ची एक शहीद हो गई है, मैं तो उसको शहीद कहूंगा, जो अपनी ड्यूटी पे थी और शहीद हो गई है, उसकी तो उसका अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसको किसी इंटेंशनली किसी बंदे ने उसको कत्ल किया होगा। और ये भी लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता उसको किसी ने कत्ल किया होगा, लेकिन मर्डर हो गया है, इसका अफसोस करना चाहिए। जब इतने लाखों लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं, इसको भी एक्सीडेंट ही अगर कंसिडर किया जाए तो वो अच्छा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो अपोनेंट होता है वो उसके कोई ना कोई कीड़े तो निकालता है, वो उसको मुखालफत करता है। तो मेरा ख्याल में इमरान खान इज कैपिटलाइजिंग हिमसेल्फ, और वो अभी इस तरह की सियासत कर रहा है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा गेन करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, कल किसी ने कहा कि ये स्वीप करेगा अगर इलेक्शन होते हैं, और इफ वॉइस लेट विक्ट्री इलेक्शन, तो ये बहुत ही एक अच्छी इलेक्शन अगर उन्होंने कराई तो ये जो है वो इमरान खान स्वीप करेगा। मेरा इससे इख्लाफ है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको स्वीप करेगा, क्योंकि स्वीप अगर हो सकता है पंजाब पे है कोई उनकी अक्सरियत हो, लेकिन सिंध में वो नहीं जीत सकता। अगर मैं भी जिस इलाके में बैठा हूँ, इमरान खान नहीं जीत सकता यहाँ पे। उसकी वजूहत है जो मैंने पिछले भी इलाक्स में बताई थी, कि इमरान खान की पॉलिटिक्स का जो अंदाज है वो छोटे सूबों में इतना पसंद नहीं किया जाता है, एक्सेप्टिंग आपका केपी के। बाकी किसी सूबे में उसको इतना पसंद नहीं किया जाता। जब तक वो चेंज नहीं करेगा तो वो स्वीप तो नहीं कर सकता, वो भुट्टो नहीं बन सकता, क्योंकि वो आवाम की बात नहीं करता, वो ऐसी बात करता है जिस बात को सारे लोग बाय नहीं करते। वो सेंट्रल पंजाब उसको बाय करता है, बाकी लोग उनको बाय नहीं करते। तो जब तक वो नहीं करेगा तो तब तक ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि वो एक मेजॉरिटी की पार्टी बन सकती है, और इलेक्शन में वो एक लीडिंग पार्टी बन सकती है, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन। यहाँ तक तो मैं बिल्कुल आप, वो बड़े रिनाउंड राइटर है सिरल, उसने लिखा था कि वो जो है वो स्वीप करेगा। तो मेरा ख्याल है वो स्वीप नहीं करेगा, लेकिन लीडिंग पार्टी वो बन सकती है। और स्वीप तभी करेगा जब वो छोटे सूबों की बात करेगा। अब तक वो नहीं कर रहा। अभी तक तो वो अपने क्राइसिस में फंसा हुआ है और उसी में बात कर रहा है, और उन्हें कोई वो जो है वो ब्लेम या ब्लेम गेम चल रही है। अब बस इस मुल्क में समझ नहीं आता कौन वीर जाफर है, कौन वीर सादिक है, और कौन पैट्रियटिक है, कौन नॉन पैट्रियटिक है। हमें इस गेम में जाना नहीं है। जो जिसको कहता है वो खुद ही उसको भुगतेगा। हम तो किसी को कोई इल्जाम है, हम तो नहीं समझते कि इस मुल्क में कोई मुल्क दुश्मन भी है। सारे मुल्क के साथ में इख्लाफ हो सकता है, मेरा बहुत सारे लोगों के साथ इख्लाफ है, लेकिन मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। जब तक हम इस मुल्क में रेस्पेक्ट के साथ रहना नहीं सीखेंगे, इस मुल्क में ये गन चलता रहेगा। थैंक यू।